morning, my dear students, and welcome you all in my class. Okay, so dear students, in my previous video, I have discussed about census method and about the sample method. Okay, so from collection of data, today I will discuss about the different methods of collecting primary data. Okay, so my dear students, there are mainly 5 methods of collecting primary data. Okay, so among these 5 methods, today I will discuss about 2 methods of collecting primary data. So dear students, please listen carefully. Our first method of collecting primary data is direct personal investigation. Okay, and then indirect oral investigation, and then information through correspondence, and fourth one is information through mailed questionnaire, and fifth one is information through enumerators. Okay, so among these 5 methods, I will discuss about direct personal investigation and indirect oral investigation today. Okay, so today about these 2 methods I will discuss. So dear students, direct personal investigation. Okay, in this method, investigator collects data directly from the person that from whom he want to collect data. Okay, means डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करता है जिससे वो जाता है डायरेक्टली पर्सनली वो मीट करके उससे डाटा कलेक्ट करता है. ठीक है, पर्सनली जाके उससे मीट करेगा एंड देन उससे डाटा को कलेक्ट करेगा इन केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. Okay, so dear students, direct personal investigation means data are collected personally by the investigator. Okay, in this method, data are collected by the investigator. Investigator means those who collect data. Okay, investigator means those who investigate. Okay, so in this method, investigator personally कलेक्टेड डाटा, वो खुद जाके डाटा को कलेक्ट करता है. ठीक है, एंड देन डाटा आर कलेक्टेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस. वो किस तरह से डाटा को कलेक्ट करता है? बाय आस्किंग क्वेश्चन वो डाटा को कलेक्ट करता है. इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डाटा बाय आस्किंग क्वेश्चंस. ओके, रिलेटिंग टू द इंक्वायरी. ठीक है, जिसके बारे में उसको डाटा कलेक्ट करना है उससे डायरेक्टली जाके वो मीट करेगा एंड देन डाटा कलेक्ट करेगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो मीन्स इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर पर्सनली मीट विथ दैट पर्सन फ्रॉम whom he wants to collect data. Okay, so dear students, for example, now I am giving you one example that if investigator wants to collect data about the wages of the workers of a factory, देन वो क्या करेगा? देखिए आप लोग, अगर इन्वेस्टिगेटर को एक फैक्ट्री का वर्कर्स का कितना सैलरी है, कितना वेजेस उसको पर डे मिलता है, उसके बारे में अगर उसको डाटा कलेक्ट करना है, देन ही विल डू व्हाट? ही विल डायरेक्टली मीट विथ द वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री. ओके, then he will collect data about the wages of the workers of a factory. ठीक है, उसको किसके बारे में डाटा कलेक्ट करना है कि वर्कर्स का वेजेस कितना मिलता है, रोज उसको कितना पैसा मिलता है. ठीक है, उसको रोज कितना पैसा मिल रहा है फैक्ट्री से. सो इसके बारे में उसको डाटा कलेक्ट करना है. तो इन्वेस्टिगेटर एट दैट टाइम इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? डायरेक्टली जाके वर्कर से मीट करेगा, पूछेगा कि आपको कितना वेजेस मिलता है पर डे. ओके, वो फैक्ट्री में आपको कितना पैसा मिल रहा है पर डे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. ओके, सो मीन्स in direct personal investigation, if investigator wants to collect data, then he will directly meet with that person from whom he wants to collect data. ओके, फॉर एग्जाम्पल और एक पकड़ लीजिए, इन्वेस्टिगेटर को डाटा कलेक्ट करना है कि
उस कॉलेज में पकड़ लीजिए किसी एक कॉलेज का नाम मैं बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक जूनियर कॉलेज पकड़ लीजिए आप लोग, उसको मालूम करना है कि वहाँ पे टीचर्स लोगों को कितना सैलरी मिलता है पर मंथ। तो वो इन्वेस्टिगेट करे, दैट टाइम क्या करेगा, डायरेक्टली उस कॉलेज में जाएगा, डायरेक्टली जाके टीचर्स से मीट करेगा, मीट करके पता लगाएगा कि उसको कितना सैलरी मिलता है पर मंथ। So this is called direct personal investigation, my dear students. Means in case of direct personal investigation, investigator directly meet with that person from whom he wants to collect data. Okay, personally वो contact करेगा उससे, ठीक है। So this is called direct personal investigation. Okay. Dear students, and in case of direct person investigation, if investigator wants to collect data about the wages of the workers of a factory, then he will directly contact with the workers of that factory. अगर उसको डाटा कलेक्ट करना है वेजेस के बारे में, उसको पता लगाना है कि किसको कितना, वर्कर्स को कितना पैसा मिलता है पार्ट पे, अगर उसको पता लगाना है, देन इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, डायरेक्टली किसके साथ कांटेक्ट करेगा, वर्कर्स ऑफ दैट फैक्ट्री, डायरेक्टली उसके साथ मीट करेगा, डायरेक्टली उसके साथ कांटेक्ट करेगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब उसको जिसके बारे में डाटा कलेक्ट करना है उससे जाके वो डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा, डायरेक्टली वो मीट करेगा। ओके, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, माय डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ I will discuss about indirect oral investigation. So what is indirect oral investigation? In case of indirect oral investigation, investigator उससे जाके मीट करेगा जिसके बारे में, मतलब पकड़ लीजिए इन्वेस्टिगेटर को किसी के बारे में डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर को डाटा कलेक्ट करना है, सपोज मैं बोल रही हूँ इन्वेस्टिगेटर को डाटा कलेक्ट करना है मेरे बारे में, उसको मालूम लगाना है कि मुझे पर मंथ कितना सैलरी मिलता है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, उसको मेरे बारे में उसको डाटा कलेक्ट करना है। लेकिन वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट ना करके दूसरों से जाके कांटेक्ट करेगा, दोज हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टच विथ मी। ओके, जो मेरे साथ, मतलब उसको इन्वेस्टिगेटर को मेरे बारे में डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन वो मुझसे आके डायरेक्टली डाटा नहीं कलेक्ट करेगा, वो दूसरों से जाके डाटा को कलेक्ट करेगा। जो सपोज पकड़ लीजिए जो मेरा फ्रेंड है, जो मतलब मेरे साथ टच में है, ठीक है, जो मेरे साथ टच में है उससे वो जाके डाटा को कलेक्ट करेगा। तो मैं बोल रही हूँ जैसे कि आप लोग पकड़ लीजिए, एग्जाम्पल क्या होगा इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन का, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, सो पुलिस डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि पुलिस क्या करेगा, अगर उसको किसी सोर्स के बारे में, मतलब किसी के बारे में डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है, देख वो क्या करेगा, उससे जाके डाटा कलेक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसके नाइबरहुड से जाके डाटा को कलेक्ट करेगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। सपोज किसी का मर्डर हुआ है, ठीक है, तो मर्डर जो जिसके घर पे हुआ है उससे तो डाटा जाके वो नहीं कलेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, उसके नाइबरहुड से जाके आसपास के लोगों से जाके डाटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है, मतलब जो उसके टच में रहता है, डायरेक्टली मीट नहीं करता है। इन दैट केस क्या होता है, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन आपका इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली आके मीट नहीं करेगा उस पर्सन से जिसके बारे में उसको डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, मतलब वो आसपास से डाटा कलेक्ट करेगा जो मतलब उसके टच में। और एक एग्जांपल दे रही हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। सपोज एक पकड़ लीजिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, पकड़ लीजिए हमारे क्लास में मुझे किसी एक इन्वेस्टिगेटर को डाटा कलेक्ट करना है
हमारे क्लास में पकड़ लीजिए एक लड़का है राहुल, राहुल के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर मीन्स दोज हू कलेक्ट डाटा, ओके, दोज हू इन्वेस्टिगेट। तो उसको इन्वेस्टिगेट किसके बारे में करना है? राहुल के बारे में। लेकिन वो राहुल से डायरेक्टली जाके डाटा कलेक्ट नहीं करेगा, वो राहुल के फ्रेंड से जाके राहुल के बारे में डाटा कलेक्ट करेगा। देन दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। Students, in case of indirect oral investigation, investigator means those who collect data, okay. Sorry, investigator means those who collect data. वो क्या करेगा? Investigator collects data from other person who are directly or indirectly in touch with them. मैंने आप लोगों को बोला है कि इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? डायरेक्टली उसी से जाके डाटा को कलेक्ट नहीं करेगा जिसके बारे में उसको डाटा कलेक्ट करना है, बल्कि वो क्या करेगा? दूसरों से जाके डाटा कलेक्ट करेगा। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, सो इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन का बेस्ट एग्जाम्पल होगा जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है? डाटा जहाँ पे पकड़ लीजिए किसी ने मर्डर किया है, ओके, सो वो जाके डायरेक्टली मर्डरर से डाटा को कलेक्ट करेगा क्या? नहीं ना। तो वो क्या करेगा? उसके नाइबर, उससे जिस घर पे वो मर्डर हुआ है उसके आसपास से जाके वो डाटा कलेक्ट करेगा, ओके। मतलब इनडायरेक्टली वो डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम होम, जिसके साथ वो टच में रहता है, ठीक है। जैसे कि पकड़ लीजिए, देखिए, हु आर from other investigator collects data from other persons who are directly or indirectly in touch with them, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल पकड़ लीजिए, इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट, ठीक है, इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर कौन है? पुलिस, ठीक है। सो वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेटर के एक्वायर द पर्सन्स प्रेजेंट एट और नियर द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। सो वो उसको क्या मालूम लगाना है कि रोड एक्सीडेंट कब हुआ, इसके बाद किसने किया, किस किस के बीच में एक्सीडेंट हुआ। वो क्या करेगा? पुलिस एट दैट टाइम इंक्वायरी करेगा कि जो आसपास में थे, रोड एक्सीडेंट के टाइम आसपास में तो लोग रहते हैं ना, तो उससे जाके वो डाटा कलेक्ट करेगा, उससे जाके वो इंक्वायरी करेगा, ठीक है, किस तरह से रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट में क्या हुआ था। तो डाटा को वो डायरेक्टली जाके उससे डाटा नहीं कलेक्ट करेगा, बल्कि वो क्या करेगा? एक्वायर द पर्सन्स प्रेजेंट एट और नियर द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। जो एक्सीडेंट जब हुआ था, उसके एक्सीडेंट जब हो रहा था तब आसपास में क्या कौन लोग थे, उन लोगों से जाके वो क्या करेगा? डाटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है, जो एक्सीडेंट के टाइम प्रेजेंट थे। सो दिस इज कॉल्ड, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। डायरेक्टली जाके वो उस पर्सन से जाके डाटा को कलेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्टली वो क्या करता है? डाटा को कलेक्ट करता है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। अगर इफ यू पीपल हैव एनी कंफ्यूजन देन प्लीज क्लियर अप योर डाउट्स, ओके। एंड मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि मैं उस एरिया में मुझे प्रॉब्लम है, that you are facing problem in this area or in that area, okay, so please message me, okay। so I hope आप लोगों को समझ में आया है। if अगर कुछ प्रॉब्लम है then please clear up your doubts। so for today my dear students, thank you, okay?